واہ بہت خوب. السلام علیکم. آج کے مہمان اعزازی رونق جمال صاحب کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ ایک مصروف کاروباری ہیں لیکن ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. آپ کی ادب نوازی اور اردو ادب کے تئیں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے چھتیس گڑھ کی حکومت نے آپ کو صوبے کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں حاجی حسن علی ایوارڈ سے نوازا ہے. اس خوشی میں ہم سب رونق جمال صاحب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے شریک ہیں. اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے رونق جمال صاحب کے اعزاز میں کل ہند افسانہ نگار فورم، 55 گروپ، گلشن افسانچہ اور ماہنامہ الفاظ ہند کامٹی کے زیر اہتمام انور مرزا صاحب اور ریحان کوثر صاحب نے آج کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. اس محفل میں آپ کا استقبال ہے. محمد سراج عظیم صاحب اس محفل کی صدارت فرمائیں گے. ریحان کوثر صاحب اس پروگرام کو تکنیکی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، لائیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اور بیک وقت فیس اور یوٹیوب پر نشر کر رہے ہیں. سامعین و ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر میں دعوت دے رہا ہوں جناب نسیم سعید صاحب کو. آپ ایک مقالہ بعنوان چھتیس گڑھ میں اردو ادب اور رونق جمال صاحب کی ادبی خدمات پیش فرمائیں گے. نسیم سعید صاحب درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ایم ربانی ہائی اسکول میں معلم ہیں. آپ ایک ماہر خطاط اور ادیب ہیں. سائنس اور ماحولیات پر آپ کی اب تک 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. جی نسیم سعید صاحب. علی جناب رونق جمال صاحب کے اعزاز میں سجی اس ادبی محفل میں آپ تمام شرکا اور تمام ادبی شخصیات کو السلام علیکم. اس جلسے کی ادبی مجلس کے سر جلسہ سراج عظیم صاحب، حاضرین محفل میں خالد بشیر تلگامی صاحب، رونق جمال صاحب، علی صدیقی صاحب اور ملکیت سنگھ صاحب، نثار صاحب، طاقہ انیس صاحب اور انور مرزا صاحب. اسی طریقے سے تمام حاضرین کی خدمت میں ایک بار پھر سے سلام. آئیے سر آپ میوٹ ہو گئے. نہیں آ رہی ہے سر آپ ان میوٹ. آواز بند ہو گئی. ہاں جی پڑھیے سر، پڑھیے سر. جی. تو 21ویں یوم تاسیس چھتیس گڑھ کے اختتامی تقریب میں اردو ادب کی نمایاں شخصیت رونق جمال صاحب کو اردو کی ترقی و ترویج، اردو ادب میں ان کی قابل قدر خدمات کے اعتراف میں حاجی حسن علی ایوارڈ صوبے کی گورنر عزت مآب محترمہ انوسویا اوئیکے صاحبہ اور صوبہ کے وزیر اعلیٰ محترم بھوپیش بگھیل صاحب کے بدست نوازا گیا. اس موقع پر کل ہند افسانہ نگار فورم، 55 گروپ، گلشن افسانچہ اور ماہنامہ الفاظ ہند کے زیر اہتمام و انتظام تہنیتی و اعزازی جلسہ با احترام رونق جمال صاحب کی آن لائن نشست میں ناچیز بندہ نسیم سعید، معلم ایم ربانی ہائی اسکول کامٹی، بحیثیت مقالہ خواں آپ کی محفل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے مقالے کا عنوان ہے چھتیس گڑھ میں اردو ادب اور رونق جمال صاحب کی ادبی خدمات. ہندوستان کے نقشے پر 1 نومبر 2000 کو قدیم ترین صوبے مدھیہ پردیش کے وطن سے پیدا ہونے والی ملک کی 26ویں نوخیز ریاست چھتیس گڑھ کا شمار معدنی دولتوں کے انبار سے لبریز خطے میں ہوتا ہے. وہیں اس ریاست کا 45% سے زیادہ علاقہ سرسبز جنگلوں و پہاڑوں سے مالا مال ہے. اعلیٰ قسم کی جدید ترین تکنیکی کاشتکاری اور صنعت و حرفت کے شعبے میں کم وقت میں ہی ترقی اور کامیابی کا جھنڈا بلند کرنے والی ریاست چھتیس گڑھ، جہاں دریاؤں، آبشاروں اور جنگلی جانوروں کی بہتات کے لیے سارے عالم میں اپنا منفرد
वजूद रखती है, वहीं ज़बान व अदब की दुनिया में भी हिंदुस्तान की किसी कदीम तरीन रियासत के मद्दे मुकाबिल अपनी अदबी, तहजीबी व सकाफती विरासतों के शोबों में भी अपनी काबिल कदर सलाहियतों, सरगर्मियों और कारनामों का एहसास कराने में अव्वलीन सफ़ों में शुमार होती रही है। बल्कि ये रियासत हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन और आदिवासी व पिछड़े तबकों की फलाह व बहबूदी की रिवायत का सरचश्मा रही है। ऐसी अजीम शान रिवायतों की पासदार रियासत छत्तीसगढ़ के यौम क़याम के 5 रोज़ा सकाफती प्रोग्राम के अख्तिताम के मौके पर एक शानदार तकरीब में सूबे की नामवर शख्सियात को सूबाई एजाज़ात से हर साल नवाजा जाता है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ की तश्कील अमल में आने के बाद से हर साल सूबे का यौम तासीस बड़े खुश्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर सूबे के हर शुबे हयात से मुंसलिक मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का एजाज़ व एहतराम मिन जानिब सूबाई हुकूमत किया जाता है। साल रवां की 21वीं यौम तासीस की इख्तितामी तकरीब में भी सूबे की काबिल एहतराम शख्सियात को एजाज़ात से सरफराज किया गया। उनमें उर्दू ज़बान व अदब की सदक़े दिल से बेशबहा खिदमात अंजाम देने वाली नुमायाँ हस्ती आली जनाब रौनक जमाल साहब को भी उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए उर्दू अदब में उनकी काबिल कद्र व काबिल सताइश खिदमात के इतराफ़ में हाजी हसन अली सम्मान बराए साल 2021-22 सूबे के डॉक्टर इज़्ज़त माब मोहतरमा अनुसुईया उइके और सूबे के वज़ीर आला मोहतरम भूपेश बघेल के बदस्त नवाजा गया। यह अवार्ड सूबे के निशान हुकूमत, सनद, शाल और 2 लाख रुपए की रकम पर मुश्तमिल होता है। याद रहे, रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के नामवर अदीब रौनक जमाल साहब अदबी हलकों में किसी तारुफ के ज़ेर साया नहीं है। बल्कि इतना ही कह दूँ तो काफ़ी होगा कि अदबी दुनिया में आप खुश्क और बंजर ज़मीन को भी ज़रख़ीज़ करना खूब जानते हैं। पहाड़ों और चट्टानों को भी तराश खराश करके अदब की दुनिया की खुश्क दरियाओं को भी रवानी अता करने के फ़न से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू और फ़ारसी में एमए की सनद हासिल करने वाले रौनक जमाल साहब का मुकम्मल इस्म ग्रामी गुलाम अहमद जमाल है। आप 25 मई 1954 को महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव में पैदा हुए। उनका अदबी सफ़र गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ायद तवालत पर मुहित है। रौनक जमाल साहब हालिया उर्दू अदब की मशहूर तरीन सिंफ अफसानचा निगारी के बेहतरीन माहिरीन में शुमार होते हैं। नई सिंफ बचकांचा अतफाली कारीन की कम होती तादाद और अतफाली रसाइल के खतरे मुस्तकबिल को खतरे में देखकर वक्त की पुकार कहानी इख्तिसार के मद्देनज़र बच्चों के लिए अफसानचे की तर्ज पर मुख्तलिफ दिलचस्प कहानियाँ सादा सलीस ज़बान में रकम करने का बेड़ा उठाकर उन्होंने इस नई सिंफ को खूब फ़रोग दिया है। आपकी अदब और अदब अतफाल पर मुश्तमिल तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपकी रिहाइशगाह रियासत छत्तीसगढ़ के ज़िला दुर्ग में कायनात स्ट्रीट नंबर 9 न्यू आदर्श नगर में वाक़ है और फिल वक्त आप लगन व सच्चे दिल से बाशिंदगान रियासत छत्तीसगढ़ को उर्दू की महक से खूब मुअत्तर कर रहे हैं। नौखेज़ रियासत छत्तीसगढ़ में उर्दू ज़बान व अदब के मतवाले व प्रस्तार कसीर तादाद में मौजूद हैं। यहाँ बेशतर स्कूलों में ज़रिए तालीम उर्दू ज़बान में भी मौजूद है। हालात गवाह हैं कि आज मुल्क के तासुब पसंद माहौल में उर्दू ज़बान व अदब की जोत जलाए रखना आंधी में चराग रोशन करने के मुतरादिफ है। ऐसे पुरस्कार माहौल में हम वतन ज़बान उर्दू की तह दिल से ही नहीं बल्कि दिलो जान से भरपूर खिदमत अंजाम देना रौनक जमाल साहब जैसे अदब नवाज और उर्दू नवाज शख्सियत का ही काम है, जो मजहब व मिल्लत की परवाह किए बगैर कौम व मिल्लत की अदबी व सकाफती खिदमात की जज्बात के मातहत मुसलसल अपनी कोशिशों व जस्तजुओं पर अमल पैरा और गामजन नजर आते हैं। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का,
गज़ल जैसी ज़बान वो बोलता है। मुल्क की कई सरकारी व गैर सरकारी एकेडमियों और मुक़्तदिर व नामवर अदबी व सकाफ़ती इदारों और तंजीमों की जानिब से हासिल शुदा मुतअद्दिद इजाज़ात की फ़हरिस्त यकीनन मौसूफ़ के मुताल्लिक़ मेरे ख़यालात की तरदीद के लिए काफ़ी है, मगर शोरा आफाक शख्सियत के लिए ये इनाम भी कम ही हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि आपकी शख्सियत खुद अदबी दुनिया के लिए इनाम हक बजानिब और मिन जानिबिल्लाह है। माजी ताहाल कई सालों से आप छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के एक फ़ाल रुकन हैं और कुल हिंद अफसानचा फोरम के सदर भी। सूबे के मुक़्तदर एजाज़ से नवाजे जाने पर मुल्क भर की मुख्तलिफ तंजीमों और शख्सियात की जानिब से आपकी इल्मी व अदबी खिदमात के इतराफ़ में मुबारकबादियाँ पेश करने का सिलसिला मुतवातिर जारी है। कुल हिंद अदब अतफ़ाल के बानी नाजिम और बचपन ग्रुप के खालिक सिराज अजीम साहब ने रौनक जमाल साहब और उनकी अहलिया को तकरीब एजाज़ के फ़ौरन बाद ही फ़ोन पर मुबारकबाद देकर अपनी खुशी का इजहार किया था। आइए हम अपनी जानिब से इस ऑनलाइन प्रोग्राम में शिरकत तमाम अरकान व सामीन व नाजरीन की जानिब से उर्दू अदब की तमाम मोहतबर शख्सियात की जानिब से कुल हिंद अफसानचा निगार फोरम, बचपन ग्रुप, गुलशन अफसानचा और महानामा अल्फाज हिंद की जानिब से एक बार फिर से उन्हें बाक़ीदत बाएतराफ़ खिदमात उर्दू ज़बान व अदब उनकी खिदमत आलिया में दोबारा मुबारकबाद पेश करके छत्तीसगढ़ रियासत में उर्दू के फ़रोग़ के इस मुतवाले व जियाले रहबर अदब की खिदमात को बमौक़े वक्त मुबारक असर नौ सराहते हैं, ताकि उर्दू दुनिया अदब में उनकी बेशबहा खिदमात का तज़किरा सदा होता रहे और उनका रुतबा व मर्तबा ताबत कायम व दायम रहे। उबरता सूरज दुआ दे आपको, खिलता फूल खुशबू दे आपको। आइए हम मौसूफ़ की खिदमात के मज़ीद अहम पहलुओं से आशना होने की कोशिश करते हैं। ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि रौनक जमाल साहब को तर्जुमा निगारी जैसे फ़न में भी खूब महारत हासिल है। हिंदी, मराठी और तमिल ज़बानों में मुतअद्दिद बेहतरीन अफसानों के आपने उर्दू ज़बान में तर्जुमे किए हैं। यही खूबी आपकी फितरी अदबी सलाहियतों पर मुहर सख्त करने के लिए काफ़ी है। फिलवक्त तक अफसानों, ड्रामों, कहानियों, मज़ाहिया कहानियों और बचकांचों पर मुश्तमिल 15 से ज़ायद मतबूआ तसानीफ से अवाम लुत्फ़अंदोज़ हो चुकी है और मुतबर सराय के मुताबिक लगभग इतने ही मजमूए ज़ेर तख्लीक़ और ज़ेर तबाह भी हैं। रौनक जमाल साहब की ज़बान सादा, सलीस, बामुहावरा और बामानी अल्फाज के ज़खायर पर मुश्तमिल होती है। हस्ब मामूल इस्तेमाल में आने वाले मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में अपनी मुकम्मल बात कह देने के फ़न से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आपकी मज़ाहिया कहानियों व अफसानचों में बाज़ मरतबा तंज़ व मिज़ा की भी वाज़ेह झलक दिखाई देती है। दकी व गैर मानूस अल्फाज का आप कतई बेजा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर बामानी अल्फाज व जुमलों की सादगी और इख्तिसारियत के एतबार से छोटों व बड़ों की ऐन फितरी शऊर के मुताबिक अपनी बात कह देना उनकी अदबी लताफत का खासा है। यही अदबी वस उन्हें औरों से मुनफरिद शनाख्त अता करती है। बेशक उनकी तसानीफ व मज़ामीन की मकबूलियत में उनकी इस फितरी अदबी सलाहियत का बड़ा दखल नज़र आता है। उनकी ज़ेर तबा तसानीफ में जब बकरा बोल पड़ा, ईद में ईद, अफसानचा फहमी, दिल की आँखें, रेजा रेजा गुरूर, बच्चों की अदालत, तौबा की रुखसती, जब जागे तब सवेरा शामिल हैं। उम्मीद है ये तमाम तख्लीकात भी अशाती मरहले से गुजर कर जल्द अज जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी और अवामुन्नास की नूर नज़र बनकर मकबूलियत का दामन थाम कर आपकी शख्सियत को मज़ीद शर्फ जिला बख्शेगी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपकी कहानियाँ, अफसानचे, इंशाइये, खाके, ड्रामे और मज़ामीन हिंदुस्तान के नामवर रिसालों की जीनत बनते रहना आम मौज़ूए गुफ्तगू है। मज़ीद बरा ये कि फ़नून लतीफ़ा की मुताद्दिद सरगर्मियाँ भी
آپ کی زندگی کی اعلیٰ شناخت بنی ہے۔ چھتیس گڑھی فلموں اور ڈراموں جیسے حرکی فنون میں وقت بر وقت کام کرنا اس کی دلیل ہے۔ کئی تنظیموں اور معروف اداروں سے ہمتاً مشغول و منسلک ہونا ان کی سماجی خدمات کی دلچسپی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ رونق جمال صاحب مخلص، رحم دل اور ملنسار انسان ہیں۔ آپ لوگوں کی تکالیف، رنج و الم اور مصائب سے روبرو ہو کر خدمت خلق کا فریضہ بھی انجام دیتی ہیں۔ انسانیت اور ہمدردی کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ معذور، اپاہج اور ذہنی طور پر کمزور بچوں کی اسکول مانوتا مانسک شالا کے ٹرسٹی کی حیثیت سے آپ اپنا کردار بالحاظ خدمت انسانیت بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ چکر کمیٹی کے رکن، انجمن ترقی اردو ہند ضلع درگ کے صدر، حمید خان ہال کے نائب صدر، عزیز انگلش میڈیم اسکول کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ درد دل معتبر بھی ہوتا ہے، شخصیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی پر رونق جمال صاحب کی گرفت کافی مضبوط و مستحکم ہے۔ دلی جذبات کا اظہار اور آپ بیتی کو الفاظ کی بہترین شکل دینے کا فن بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ ادب نواز حلقوں سے میری مخلصانہ التجا ہے کہ رونق جمال صاحب کی شائع شدہ تخلیقات کا مطالعہ کر کے ادبی ذوق و لطافت کو محسوس کریں اور معاشرتی و جذباتی لمحات کے احساسات کے زیر سایہ درس سے پند و نصیحت حاصل کریں۔ چھتیس گڑھ صوبے کی بال بھارتی کی ششم و ہفتم جماعت کے نصاب میں آپ کی کئی کہانیاں اور ڈرامے شامل ہونے سے ان کی ادبی صلاحیتوں کے مظاہروں کی نمائندگی و عکاسی بھی بزور قلم خوب ہوتی ہے۔ انہی خوبیوں و صفتوں پر اکتفا کرنا ہوتا تو اور بات تھی، مگر آپ آکاش وانی کی نشریات اور ٹی وی کی متعدد محفلوں میں بسا اوقات اکثر سنائی بھی دیتے ہیں اور دکھائی بھی دیتے ہیں۔ اس سے آپ کی علمی و ادبی مشغولیات و مصروفیات میں شرکت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، بے شک آپ اس رواں دواں دریا کی مانند ہے جس سے ہر کوئی سیراب ہوتا ہے، اور خوب تر سیرابی کے باوجود بھی اس دریا کی روانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی چند تصانیف کے نام: قتل کا موسم، پھول کھلنے دو، قوس قزح، گرین کینسر، گونج، زہریل انسان، ایک پریشان باقی انجان، پنجرے کا آدمی، چالاک بجو کے چاند کنارے، ادھورا آدمی، چھوٹا پولیس والا اور ابابیلیں شرما گئیں، سانپوں کی دنیا، ابا جان اور کورونا کے رنگ ہیں۔ ان میں سے کئی تصانیف بچوں کی خاطر تخلیق کر کے نونہالان چمن کی ہمہ جہت ترقی کو جلا بخش کر ادب اطفال ہونے کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے، موجودہ اردودہ نونہالان چمن کے معاشرے میں ایسے ادیب اطفال کا قطعی فقدان ہے۔ ادبی تخلیقات کا صرف منظر عام پر آ کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ادب کی دنیا میں اس تخلیق کی قدر و پیمائی کی کسوٹی نہیں ہوتی، بلکہ منظر عام پر آ کر مقبول عام ہونا اور حکومتی ادبی محکموں میں اس کی پذیرائی ہونا بھی اس کی معیاریت کی انتہا کی تصدیق پر مہر ثبت ہونا ضروری عنصر ہے۔ رونق جمال صاحب کی کئی تصانیف اپنے وقت کی شاہکار تسلیم کی جاتی ہیں۔ مارچ 2013 میں بہار اردو اکیڈمی پٹنہ کی جانب سے ان کی تصانیف پنجرے کا آدمی اور چالاک بجوکے کو بالترتیب اختر اورینوی ایوارڈ اور احمد جمال پاشا ایوارڈ جیسے توصیفی اسناد سے نوازا جانا ہی ان کی معیاری ادبی خدمات کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ اس سے قبل سال 2009-10 میں بھی طویل اور قابل قدر ادبی خدمات کے اعتراف میں شاہدہ اندوروی کل ہند اعزاز برائے اردو زبان و ادب کی خدمات من جانب مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی بھوپال
آپ کی خدمت کی شرف مقبولیت کی زینت بنا تھا۔ نہ جانے ایسے کتنی اعزازات آپ کی پر رونق ادبی شخصیات کے اعتراف کا ضامن بنے، مگر پھر بھی کم بنے۔ عصر حاضر کی ایسی بیش بہا، انمول اور پروقار ادبی شخصیت کی متعلقہ ادبی خدمات کا تھوڑا بہت صلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی ادبی اوصاف حمیدہ سے اردو داں طبقہ خود مستفیض ہو اور اردو ادبی دنیا کو ان کی خوشبو سے معطر کر دے۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ رونق جمال صاحب کی ادبی و سیاسی خدمات میں دن بدن اضافہ ہو اور ان خدمات کا بہترین صلہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں نوازے، نیز ان کی زندگی کے لمحات و درجات میں خوب اضافہ ہو۔ رونق جمال صاحب کی دعاؤں کی برکات سے خاکسار کو بھی اپنی زندگی میں خوب سے خوب تر ترقی کرنے کا موقع عنایت ہو۔ آمین۔ ریحان سر۔ یہ تھے جناب نسیم سعید صاحب۔ پروگرام شروع ہونے کے بعد شامل ہونے والے تمام مہمانوں کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ ہم نے مہمان اعزازی رونق جمال صاحب کے بارے میں سنا، اردو کے تئیں آپ کی خدمات کے بارے میں جانا۔ آئیے سامعین و ناظرین، اب آپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ ہی سے سنتے ہیں۔ آپ سے گفتگو فرمائیں گے محمد سراج عظیم صاحب۔ محمد سراج عظیم صاحب ادب اطفال کے ایک سرگرم سپاہی ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ادب اطفال کی ترویج و ترقی کے لیے سرگردہ ہے۔ اس غرض سے آپ نے بچپن گروپ بھی قائم کیا ہے۔ رونق جمال صاحب سے آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ محمد سراج عظیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ محمد سراج عظیم صاحب۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ یہ موقع میرے بڑے بھائی رونق جمال صاحب کی تہنیت کے اوپر مجھے ریحان کوثر صاحب، انور مرزا صاحب، ان لوگوں نے صدارت دے کر میری ذمہ داری بڑھا دی، اور کسی حد تک مجھے کہنا چاہیے کہ باندھ دیا کہ میں اپنے دائرے میں رہوں، ورنہ شاید یہ تھا کہ میں رونق بھائی سے جو میرے تعلقات ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، تو میں رونق بھائی سے اس طرح کی بات کو بہرحال میں شروع کرتا ہوں اس اپنے ٹوٹے پھوٹے ایک شعر کے ساتھ۔ آفتاب ہے، آفتاب ہے، مہتاب ہے، با کمال ہے وہ، آفتاب ہے، مہتاب ہے، با کمال ہے وہ، آسمان ادب کا رونق جمال ہے وہ۔ واہ، بہرحال رونق بھائی، میں بار بار اس کو نہیں دہرانا چاہتا، آپ کو مبارکباد پہلے دے چکا ہوں، اور اب اپنے تمام حاضرین کے سامنے ایک بار پھر جی شکریہ، صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان گوشوں کو میں آپ کے توسط سے اپنے سوالات کے دائرے میں جو ہے وہ لے کر آؤں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
आपने अपना अदबी सफर कैसे शुरू किया? क्योंकि बज़ाहिर तो आप जो है वो एक नवाब खानदान के हैं और कारोबारी खानदान है, और कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा खानदान है, तो कैसे आपको जो है ये अदबी सफर आपका कैसे शुरू हुआ? मैं जब मिडिल स्कूल में ज़ेरे तालीम था, हमारे घर का जो माहौल था बहुत अदबी। दादा हजरत गुलाम हुसैन राज, उनके भाई अब्दुल रशीद साहब, उनसे छोटे अब्दुल सर और फूफा जरीफ साहब, ये अक्सर शाम में यकजा होकर हवेली में बैठा करते थे और अपने कलाम पर तबादला ख्याल करते, एक दूसरे को अपनी तख्लीकात सुनाते। और हम सभी, क्योंकि उस वक्त भी नहीं थी, तो लैंप जला करता था। ये लोगों की महफिल कनेक्शन, वॉइस इंटरप्शन हो रहा है शायद। हाँ, बार बार आवाज जा रही है। जी रेहान साहब, वॉइस जी है जी, जरा रौनक भाई, आपके तरफ से ही मसला है वो। आप अगर अच्छा, एक ही कनेक्शन पे कई लोग कुछ चला रहे होंगे तो सब बंद कर दीजिए, आप अपना ही कनेक्शन चालू रखिए। अच्छा अच्छा, बाकी सबका नेटवर्क बहुत पावरफुल है जी, आपका ही नेटवर्क में कमजोरी है। गलबन भाभी भी देख रही हैं शायद। हाँ, तो सब बंद कर दीजिए, सिर्फ रौनक जमाल साहब अपना आप चालू रखिए। हाँ, वो उधर एलिया वगैरह और जी, अड़ोस पड़ोस के लोग बैठे हुए जी, थे, जी, मैं बंद करा दिया सब। जी जी जी, आप बोलिए, आप आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो सिराज साहब, चूंकि घर में काफी अच्छा अदबी माहौल होने की वजह से काफी रिसाइल भी आते थे, और चूंकि मैं, तो हमारे लिए खिलौना नूर और हिलाल, ये रिसाले बच्चों के लिए आते थे। घर में शमा आता था, 20वीं सदी आता था, बुतूल आता था, और आपके एक बेंगलोर से उर्दू का अखबार निकलता था, नशेमन। मगर हम लोगों को इन रिसाइल और किताबों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल खिलौना और नूर को के मुताले से मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें जो हल्की फुल्की कहानियां होती है, मैं भी लिख सकता। और मैं लिखता रहा, और 8th क्लास के बाद में फिर हाई स्कूल की तालीम के लिए अमरावती मुझे हिजरत करनी पड़ी। तो वहाँ मल्टीपर्पज स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, और उर्दू के काफ़ी अच्छे असातिज़ा थे, जिनमें मैं खुसूसी तौर पर हमारे वलीउर रहमान सिद्दीकी साहब, सैयद जाकिर अली साहब, इनामुर रहीम साहब, अब्दुल मजीद साहब, सैयद खुर्शीद अली साहब, तो मैं उन लोगों को भी अपनी तख्लीकात दिखाया करता था। और अक्सर इम्तिहान में भी जो पेपर में उर्दू के पेपर में मजमून लिखना होता था, तो अक्सर ये होता था कि 20 में से 20 नंबरात मुझे मिलते थे। तो वो बड़ी शाबाशी वगैरह देते थे, और मेरे साथियों को भी दिखाते थे कि देखो, इस तरीके से लिखने की तुम भी कोशिश करो। और जब मैं उनको अपने अफसाने और ऐसी कुछ भी तख्लीकात दिखाता था, तो खुश होते थे, काफ़ी मेरी हौसला अफजाई भी करते थे। और वालिदा के नाम से हमारे यहाँ पे खातून मशरिक आया करता था। तो खातून मशरिक की जो कहानियां होती थी, वो बड़ी सादा सलीस जबान में घरेलू किस्म की होती थी। उनसे मैं मुतासिर हुआ, और मैंने उसी तर्ज पे लिखना शुरू किया। और दिल में ये बेदार हुई। रौनक भाई, आपने ये लिखना शुरू किया, बहरहाल वो बचपन से आपके खानदानी माहौल था, खानवादा आपका जो पढ़ा लिखा था।
आपने जो पहली कहानी लिखी है तो वो क्या क्या अफसानचा थी, अफसाना थी, या बच्चों की कहानी थी, या कोई मजमून था? अफसाना था, और मैंने अशात की गर्ज से उसको खातून मशरिक के मुदीर अब्दुल्ला साहब के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत से गलतियों की निशानदही करके मुझे वापस किया कि इन चीजों को आप ठीक करो। मैंने कोशिश किया, दोबारा भेजा, और वो खातून मशरिक में शाया हुई। उसी जमाने में इनकलाब और उर्दू टाइम्स मुताले में थे, और जोगिंदर साहब औरंगाबाद पहुंच चुके थे, और अफसानचे का वो काफी तख्लीकात लिखना बहुत आसान है। मैंने भी कोशिश किया, इनकलाब और उर्दू टाइम्स को भेजता रहा, और ये खुशनसीबी रही कि 10 अक्टूबर 1972 को बॉम्बे के रोजनामा इनकलाब के गोशा अदब में मेरा पहला अफसानचा बउनवान इंटरव्यू बहुत ही मुख्तसर शाये हुआ, और फिर मैंने उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा। फिर जोगिंदर पाल साहब से भी राब्ता हुआ, तो उन्होंने भी कहने का हौसला मतलब कि आप अफसाना ही बन गए, आप अफसानचा की तरफ ही चल पड़े आप, बजाय इससे कि हाँ, बस उस इंटरव्यू से अदब अतफाल से कोई ताल्लुक नहीं था, अदब अतफाल के पेज पर छप गए उस वक्त नहीं था, लेकिन अफसानचा लिखा आपने बड़ों के लिए। ये बड़ा अजीब तजाद है कि बच्चों के सफे के ऊपर जो है वो अफसानचा बड़ों का छपे, और वाकई ये एक कमाल की बात है। बहरहाल उसके बाद आपके अफसानचों का एक सफर शुरू, और आज हिंदुस्तान के उर्दू अदब में, बल्कि बर्रे सगीर में आप अफसानचे का एक मोतबर नाम है, आपका नाम एक मोतबर नाम है। शुक्रिया। अफसानचे की टेक्निक के बारे में कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत से नए लिखने वाले हैं, खुद मैं भी अफसानचा लिखता हूँ, लेकिन मेरे अफसानचों में वो बात नहीं होती जो आपके अफसानचों में है या दूसरों के। तो अफसानचों के लिए क्या होना चाहिए, कैसे किस तरीके से कहना चाहिए कि वो जो एक तासुर या वहदत तासुर जो है उसके लिए क्या जरूरी है अफसानचों में, जो मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि अफसानचा वही कलमकार बहुत अच्छा लिख सकता है जो तवील अफसाना अच्छा लिख सकता है, क्योंकि अफसानचे की जो टेक्निक पे बात होती है वही लवाजमात अफसानचे में भी चाहिए जो एक अफसाने में होते हैं। बस ये है कि अफसानचे का कैनवास, अफसाना तो तवील होता है, और अफसाने में वो तमाम तवालत आती है कि आपको अगर कुर्सी का जिक्र करना है तो कुर्सी कहाँ से आई, कैसे बनी, कौन सी लकड़ी से बनी, क्या हुआ, कैसे, ये एक तवालत है पूरी। लेकिन अगर आपको इसको कुर्सी को अफसानचे में इस्तेमाल करना है तो आप इसको सिर्फ ये कहते हैं कि वो कुर्सी पर बैठा। कुर्सी से मतलब नहीं कि कुर्सी का क्या था, कैसी थी, कौन से रंग की थी, किस रंग की थी। तो अफसानचा लिखना और अफसाना लिखना मेरे अपने हिसाब से दीगर चीज है, और इसके ऊपर किस तरीके से इसको कैसे कॉम्पैक्ट बनाया जाता है अफसानचे को। ये इस तरह का क्या है कि जो अगर अफसाना लिख रहा है तो उसके पास में अल्फाज है, जखीरा है अल्फाज का, और अल्फाज से खेलने का फन उसको आता है। अफसानचा जो है गजल से भी नाजुक है, और ये अफसानचा जो फन है ना, ये समंदर को कूजे में समोने वाला फन है। तो इसमें जिसको अल्फाज से खेलने का फन आता है कि कम से कम अल्फाज में किस तरीके से तवील बात को रख दिया जाए, वही अच्छा अफसानचा रकम कर सकता है। और मैंने भी पहले अफसाने ही लिखे हैं, और अफसानों पे ही मैंने बहुत काम किया है, और धीरे धीरे जब अफसानचे की तरफ मैं आया तो मुझे अफसाना लिखने की जो मेरा फन था, और जो मुझे तो ये लगता है कि आपने तो शायद अफसाने जो है वो बस साल भर या 1.25 साल 1.5 साल लिखे, उसके बाद तो आप मुस्तकिल एक अफसानचे की दौड़ में लगे हुए हैं, और आपको आज तक कोई हरा नहीं पाया, आप तो सबसे आगे अभी तक चल रहे हैं। नहीं ऐसा ये तो गलत होगा ऐसा सोचना। नहीं दौड़ में तो आगे सारे मेरे हम भी है जो अच्छे अफसानचे रकम कर रहे हैं, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये बचपन ग्रुप, अफसाना निगार ग्रुप और गुलशन अफसानचा की वजह से जो नई नस्ल सामने आई है ना, तो अब इनसे भी मुझे खौफ आने लगा है।
ये इतने बहरहाल ऐसे ऐसे नहीं, मौजूद उठाकर ला रहे हैं। लेकिन रौनक भाई पीटी उषा का जो है वो तो मामला ये रहेगा कि पीटी उषा पहली बार जो है राज भाई आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से पीटी उषा ने पहली बार तारीख रकम की कि वो दौड़ती रही ओलंपिक्स में पहुंची फाइनल में जी, तो वो तो जी, रौनक जी। जमाल को शायद कोई भी नहीं कर पाएगा कि रौनक जमाल का नाम तो रहेगा। ये फैसला तो आप लोगों को और काराइन को अगली सफों में मैं रहेगा कैसे नाम। ये बात कर सकता हूँ जी। हाँ, ये बात और है कि मेरा अफसानचे का सफर बहुत तवील है माशाल्लाह। 1972 10 अक्टूबर 2022 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह 50 साल होंगे। बहुत अब मैंने लंबा क्या सफर है, किया, काफी कैसा तवील। किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये फैसला तो आप लोगों को करना है। इन तमाम बातों के बावजूद आप बहुत कामयाब, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। एक मुझे तो मैंने देखा है कि आप जो है एक आपने यहाँ के वो छत्तीसगढ़ी जबान के बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो इनको किस तरीके से आप इन मामलात को, अपने बिजनेस को, अपने कहना चाहिए कि जो आपका अदबी ग़िज़ा है उसको, और फिर उसके बाद जो है ये आपकी फिल्मी अदाकारी जो है, इनको किस तरीके से आप तकसीम करते हैं अपने अपने वक्त के अंदर? देखिए कि मैंने हाई स्कूल में ही ड्रामे लिखे और स्टेज भी किए, डायरेक्ट भी किए, खुद एक्टिंग भी की, और उसको ज्यादा जिला और मौका मुझे कॉलेज में पहुंचकर मिला। और मुझे फिल्मों में भी जाने का बहुत शौक था, हिंदी फिल्मों से मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। उस सिलसिले में अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकबाल न्याजी, असलम परवेज, ये लोग जानते हैं कि बॉम्बे में रहकर, क्योंकि ये भी मेरे साथ चला करते थे, दौड़ भाग में मेरा साथ दिया। इकबाल न्याजी तो ड्रामे का बहुत बड़ा नाम है। इकबाल न्याजी हैं, असलम परवेज हैं, ये तो बहुत बड़े नाम हैं। के पास आप तो अपने उसमें हैं, अफसानचे में जैसे हम मिला करते थे। हाँ, और अफसानचे भी हम साथ में बैठ करके, जब मैं बॉम्बे जाता था और वहां कयाम असलम परवेज के दौलत कदे पे या इकबाल न्याजी के दौलत कदे पे कयाम करते, हिंदुस्तान में उर्दू टाइम्स में जाया करते थे। तो अफसानचे के भी ये लोग मेरे हम सफर रहे हैं, असलम परवेज है, इकबाल न्याजी है, और मेरी फिल्मी स्ट्रगल में भी इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। लेकिन कुछ बाद में फिर कारोबारी मशगूलियत की वजह से मुझे अमरावती से हिजरत करके इधर छत्तीसगढ़ दुर्ग में आना पड़ा। तो यहाँ आकर के थोड़ा मेरा कलम रुक गया था। जब 2-4 साल बाद जब मैंने सब अपना बिजनेस को सेट किया, फिर दोबारा मैंने अपनी कलम को संभाला और लिखना शुरू किया। तो वैसियत एक ड्रामा आर्टिस्ट और ड्रामा निगार के छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने कोशिश की, और मुझे कुछ 4-5 छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। ड्रामा जिस तरीके से मैं अफसानचे से जुड़ा हूँ, माशाल्लाह ड्रामे से भी मुझे ड्रामे से भी मुझे वैसे ही दिलचस्पी है, और मैं हमेशा कोशिश भी करता रहता हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं मौका हाथ से जाने नहीं देता। यही वजह है कि मैंने बच्चों के लिए भी ड्रामे लिखे, और उसका बाकायदा मजमुआ भी एक परेशान बाकी अनजान के नाम से शाया हुआ है। तो इस तरीके से ये ड्रामा और फिल्मों का सफर भी जारी है। लेकिन लिखने लिखाने का मौका पोल्ट्री के बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा मिलता है कि मेरा पूरा दिन जो है वो कारोबारी शक्ल में पोल्ट्री में गुजरता है, और वहां ऑफिस है, और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मैं होता हूँ, मेरे रिसाले होते हैं, मेरी डायरी होती है, मेरी कलम होती है, और जहन में जो ख्यालात आते हैं उनको मैं कलम बंद करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि एक गुज़िश्ता दिनों मेरा एक बच्चों की कहानी सादतमंद चूजे काफी बहस का मौजू बनी रही, हालांकि वो बिल्कुल मैंने एक पेज में और वो चूजों को देख करके लिखा था, और 1 घंटे में वो कहानी मैंने मुकम्मल की थी। और जिस आपके तेलंगाना के रोशन सितारे में शाया हुई एक
अदबिस्तान ग्रुप में मैंने उसमें भी डाला था, काफी उसमें भी काफी बहस होती रही और उसको काफी पसंद किया जाता है। और अभी हाल ही में आपके बच्चों की दुनिया में मेरे बचपन का शौक और खुशहाली इस उन्वान से मेरा एक मजमून उसमें शामिल है नवंबर के शुमारे में, कि कैसा मैंने मुर्गबानी का कारोबार को अपनाया है। वो जिन लोगों ने उसका मुताला किया होगा तो उनको काफी महसूस ये होने का और जानने। रौनक भाई, ये आपकी एक तवील जिंदगी जहां तक पहुंचे आप, ये अब हम आपके उस साइड पर आते हैं कि जहां से आपका कहना चाहिए कि एक सोशल जिंदगी शुरू होती है। आप बहुत से क्लब्स के मेंबर हैं और बहुत से सोशल जो एक्टिविटीज हैं आपकी वो करते रहते हैं, और ये जो अवार्ड आपको को दिया गया, बज़ाहिर तो ये जो है अदबी खिदमात के पास उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए दिया गया, लेकिन इसके पीछे और भी अवामिल हैं जिनकी वजह से ये आप वहां तक पहुंचे, और जो आपका कहना चाहिए कि सूबे का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो आपको तफवीज किया गया। तो जी, इसमें आपका सोशल लाइफ जो है उसमें भी कहीं अदब का कुछ ताल्लुक है, या ये कि सोशल लाइफ जो है वो अलग है और अदब आपका अलग है, आपका बिजनेस अलग? कहना है जी कि आपकी कई जिहात हैं, तो उन जिहात में से एक जिहत जो है वो आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वाकई में अक्सर लोग मुझे पूछते भी हैं, टोकते भी हैं, खासतौर से मेरी अहलिया बड़ी परेशान रहती है कि हर जगह आपको घुसने की आदत है। तो सोशल फील्ड में भी भाभी वाकई मुझसे भी कई बार शिकायत कर चुकी हैं वो। लेकिन क्या है कि नाना चूंकि सियासत में थे और मुजाहिदे आजादी थे, तो वो सियासत जो है मेरे ब्लड में है। और मैं यूथ कांग्रेस का जब महाराष्ट्र में था तो संजय गांधी की हयात में ही जनरल सेक्रेटरी बन गया था, तो उस वजह से बोलने का, तकरीर करने का, यानी मुझे काफी मौके मिले और अच्छा बोलने की वजह से मुझे काफी इसमें प्रोग्राम्स में बुलाया भी जाता था और बोलने का मौका भी दिया जाता था। तो एक वो जो माइक फोबिया होता है वो मुझ में बिल्कुल कतई नहीं है, मैं बहुत देर तक और मुसलसिल बोल सकता हूँ। और वहां पे ये यूथ कांग्रेस में रहने से लोगों में, मुस्लिम समाज में काफी जान पहचान और सब ये बढ़ी, तो समाजी कामों में लोग अपने काम मेरे पास लेकर आते थे, मैं उनकी मदद करता था, तो उनमें इज्जत बढ़ी, तो शौक भी पैदा हुआ कि ये काम करना चाहिए। उसके बाद में फिर उसके लिए कोई मुझे रौनक भाई, अभी जिक्र आया हमारी बहुत मोहतरम, बहुत प्यारी सी भाभी का, तो जैसे अभी आपने कहा है कि वो जो है बड़ी परेशान रहती हैं, तो ये क्या ये वाकईतन ये बात है, या ये कि कुछ आपकी इन सारी एक्टिविटीज से, इन तमाम चीजों से, इन तमाम मसरूफियात से कुछ जो है वो कभी भाभी से कुछ उठापटक हुई क्या? नहीं, उठापटक तो नहीं हुई। ये क्योंकि क्या है कि देखिए, कारोबार के बाद में जो वक्त होता है वो दोनों का होता है, और जब मैं तना होके सोशल वर्क करता हूँ या अदबी मसरूफियात में रहता हूँ या लायंस क्लब में काम करता हूँ या फिल्मों में तो ये उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होती है, क्योंकि उसके वक्त में से मैं वक्त को चुरा लेता हूँ, तो उसका शिकवा बिल्कुल बजा है। लेकिन उन्होंने ही हौसला अफजाई की है, जिसकी वजह है कि आज मैं जहां भी, चाहे वो इस अवार्ड को मिलने में, वो एक कहावत है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो हर फील्ड में उनका हाथ मेरी पुश्त पे है। वो भला ही थोड़ा आनाकानी के साथ होता है, लेकिन उसको कहा जाए नहीं तो उसको ये भी तो कहा जा सकता है कि कामयाब औरत का हाथ होता है, इसका मतलब वो स्ट्रेटेजिस्ट वही है। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, उस चीज को तस्लीम करता हूँ। बहरहाल सामाईन और हाजरीन, ये रौनक भाई के जिंदगी के वो पहलू थे जो आप सुन रहे थे, और अब मैं यहाँ
चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोगों को बोलना है रौनक भाई के लिए, रौनक भाई का से लोगों का जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत है उस पर, तो अब मैं यहाँ इसको रोकता हूँ और मैं मोहतरम अली सिद्दीकी साहब से कहता हूँ कि यहाँ हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है और आप अपना सिलसिला शुरू रखें। नवाजिश। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सराज अजीम साहब। सामीन और नाजरीन, आपने मेहमान एजाज़ी जनाब रौनक जमाल साहब और हमारे सदर जनाब सराज अजीम साहब की गुफ्तगू सुनी, लेकिन ये तो रहे वो सवाल जो मोहम्मद सराज अजीम साहब ने पूछे और रौनक जमाल साहब ने जवाब दिए। कोई ऐसा सवाल भी हो सकता है जो पूछने से रह गया हो, लेकिन यहाँ मौजूद शुरका में से किसी के दिमाग में हो। अगर ऐसा कोई सवाल है तो उसे पूछने के लिए तमाम शुरका को आम दावत दी जाती है। आप रौनक जमाल साहब से जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब ये दौर आम दावत का दौर है। शुरका में से जो लोग भी रौनक जमाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं उनका इस्तकबाल है। जी, मैं रेहान कौसर, रौनक जमाल साहब से एक सवाल है कि जी यूं तख्लीकार जो होता है उसको हर तख्लीक जो है वो अजीज होती है, और माशाल्लाह आप तो उससे भी आगे निकलकर कई अलग अलग असनाफ पर जो है वो तबाह आजमाई करते हैं। तो मेरा आपसे एक सीधा सीधा सवाल है कि आप अफसानचे भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, उसी तरीके से आप जो है मतलब कहना चाहिए बच्चों के लिए भी काफी हद तक बहुत कुछ लिखते हैं। तो इन तमाम असनाफ में आपकी सबसे करीबी या सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कौन सी सिंफ में होते हैं, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। मुझे अफसानचा लिखने में बहुत लुत्फ आता है और मैं अपने आप को अफसानचा रकम करते वक्त बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और अफसानचा जितना लिखने में मुझे लुत्फ आता है, अफसानचे पढ़ने में भी उतना ही मजा आता है। और मैं मेरी आज जो पहचान भी है वो बहैसियत एक अफसानचा निगार के है। उसके बाद में मुझे बच्चों के लिए लिखने में बड़ा महसूस होता हूँ, बच्चों के लिए जब कुछ लिखता हूँ। रेहान साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, हमारे दरमियान हेलो और मेहमान भी मौजूद हैं। हेलो जी जी, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तासुरात भी पेश करें या सवाल ही करना है जी? आप सवाल कर सकते हैं, तासुरात पेश करना चाहे कर सकते हैं। तासुरात बाद में पेश करेंगे, तासुरात का भी वक्त आएगा। फिर तो दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो सवाल ये है कि मैं समझता हूँ कि आपने अभी एक बात, खूबसूरत बात कही रौनक जमाल साहब के जो अफसानचा लिखता है, अफसानचा निगार के लिए ये ज़रूरी है कि वो नज़र अफसानों पर भी हो, फन अफसाना पर। अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। कई लोगों ने ये बातें कही हैं और ज़रूरी भी हैं। खैर टेक्निक्स अलग अलग हैं, जो तवील अफसाना होता है और जो अफसानचा होता है, तो इनके दरमियान, क्योंकि अफसानचे में वो सब चीज़ें नहीं समा सकती हैं जो एक तवील अफसाने में होती है। खैर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप ड्रामा निगार भी हैं, जी तो मैं आपकी राय भी इसमें जानना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि अफसानचा निगार के लिए ड्रामा निगारी का जो फन है उस पर भी नज़र होनी चाहिए। वजह यह है कि ये जो अफसानचे में जो मकालमे होते हैं या जो इख्तिसार होता है, तो ड्रामा के जो मकालमे होते हैं परफेक्ट होते हैं। तो इस हवाले से आप बताइए कि
کیا یہ ضروری ہے یا اہم ہے یا اگنور کرنے کے قابل ہیں یہ رائے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. یہ بالکل صحیح ہے کہ ڈرامہ نگاری کا فن بھی مجھے افسانچہ نگاری میں بہت مدد کرتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی جو افسانچے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مکالمے زیادہ ہوتے ہیں, تو ڈرامے کی رقم کرنے کی وجہ سے افسانچوں میں کس طریقے کا مکالمہ ہونا چاہیے, کتنا اس میں کساوٹ ہونی چاہیے, وہ ڈرامہ لکھنے کی وجہ سے افسانچے میں مجھے کافی مدد ملتی ہے. یہ بہت اچھے پہلو پہ آپ نے نظر ڈالی اور میرا بھی خیال اس جانب لے کر گئے آپ. بہت اچھا سوال تھا, اور واقعی میں ڈرامے کی وجہ سے مجھے کافی مدد ملتی ہے افسانچے میں بھی. بہت صحیح کہا ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید. جی شکریہ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب. ہمارے درمیان موجود ہیں ملکیت سنگھ جی بھی. کیا میں آپ کو دعوت دے سکتا ہوں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی میں تو سن ہی رہا ہوں, تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں ان سے بہت متاثر ہوں. جو لکھتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو. ویسے بھی ان سے الگ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے ان کے واٹس ایپ نمبر پر, تو میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے. جی ہمارے درمیان اور بھی مہمان موجود ہیں, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ 2-4-5 سیکنڈ کے بعد اس سلسلے کی اگلی کڑی کو آگے بڑھایا جائے گا. شاید سوال جی جواب میرے خیال سے میرے خیال سے سوال جواب کا سلسلہ جو ہے یہاں روک کر جی اظہار خیال کا سلسلہ شروع کیا. جی بالکل. اب آئیے رونق جمال صاحب کی شخصیت اور فن سے متعلق مہمانان خصوصی کی باتیں سنتے ہیں. ہمارے درمیان جو بھی مہمان موجود ہیں اپنے تاثرات رونق جمال صاحب کے فن اور شخصیت سے متعلق ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں, ہم بھی اس سے محظوظ ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر انیس رشید خان صاحب, پھر اس کے بعد میں خالد بشیر صاحب سے درخواست کروں گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے میں اپنے کچھ تاثرات جو ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں اسی شہر سے محترم جناب رونق جمال صاحب کا بھی تعلق ہے, اور جتنی میری عمر ہے اتنی عمر انہوں نے لکھا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں ابھی بہت غور سے سن رہا تھا کہ 1972 میں انہوں نے پہلا افسانچہ لکھا, اور 1972 میں 2 سال کا تھا. اب میں کچھ باتیں اپنی مطلب میری یادداشت سے میں آپ کی کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو یقیناً یہاں اس محفل میں بہت لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اس بارے میں. ایکچولی آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے جب جناب رونق جمال صاحب جو ہے وہ لکھتے تھے, اور میں یوں سمجھ لیجئے کہ 6ٹھی-7ویں کلاس کا ایک بچہ تھا, تو میں ان کی ایک محفل میں بیٹھا تھا. اس محفل میں میرے مرحوم والد صاحب, میرے نانا جان, میرے مرحوم خالو جان, یہ تمام لوگ موجود تھے. اور اس محفل میں محترم رونق جمال صاحب جو ہیں اس وقت انہوں نے ایک افسانچہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا دیمک, اور انہوں نے وہ بہت اچھے سے وہ پورا محفل میں سنایا. اور میں چونکہ ایک بچہ تھا اور تھوڑا سا اردو ادب میں بہت ذہین بھی تھا اس زمانے میں بھی, تو مجھے وہ بہت جلدی کیچ ہوا اور میں بہت متاثر ہوا اس افسانچے سے, یا وہ جو انہوں نے جو لکھا تھا نا وہ بہت پیارا افسانچہ تھا. تو میں یوں سمجھ لیجیے کہ وہ زندگی کا پہلا افسانچہ تھا جو میں نے کسی کے منہ سے لکھا تھا. یہ شاید انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے کسی پروگرام کے لیے لکھا تھا, اور وہ اس ہماری ایک گھریلو محفل تھی جس کے اندر آپ نے یہ چیز سنائی تھی.
बाद में फिर जब मैं आगे मतलब मेरी तालीम आगे हुई तो उस वक्त जनाब यहाँ से मतलब अमरावती से जा चुके थे और छत्तीसगढ़ वगैरह में आप चले गए थे। बहरहाल बाद में मेरा सिलसिला फिर साइंस में शुरू हुआ तो उर्दू अदब एक तरह से पीछे रह गया और मैं साइंस में रहा। लेकिन तकरीबन 35 साल बाद हमारी मुलाकात बचपन ग्रुप पर और गुलशन अफसानचा ग्रुप पर जो है यहाँ हुई और मैंने सर को पहचान लिया कि ये वही हैं जिनको मैंने बचपन में डायरेक्ट मतलब सुना था। मुझे यकीन है आपको वो जो आपने पढ़ा था दीमक जो जिसका उन्वान था यकीनन आपको याद होगा। बस मेरे यही तासुरात थे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अजान शुरू हो चुकी है। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर खालिद बशीर तिलगावी साहब को दावत देता हूँ। खालिद बशीर तिलगावी साहब। अस्सलाम अलैकुम। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो जी खालिद भाई, आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? रौनक जमाल और अफसानचों की दुनिया। कुछ अदबी शख्सियत ऐसी हैं जो खुद को अदब की खदमत के लिए वक्फ कर चुकी हैं। उनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ अदब के लिए होकर रह गया है। ऐसी शख्सियत में एक बहुत ही नुमाया नाम जनाब रौनक जमाल साहब का है। इस मख्तसर से तासुराती मजमून में न तो उनकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता मुमकिन है और न ही उनकी अदबी खदमात का। अल्लाह ने उन्हें कई सिफात से मुतनसिफ फरमाया है। बड़े अज़म हौसले वाले इंसान है। अदब में उनके उन्हीं अजाइम हौसलों और खदमात का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत ने उन्हें एक बड़े एजाज से सरफराज किया है। मैं तहे दिल से इस एजाज के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह से दुआ गो कि आइंदा भी इसी तरह की कामयाबी उनकी कदम बोसी करे। रौनक जमाल साहब बुलंद अखलाक और आला ज़र्फ के मालिक है। मेरा जाती तजुर्बा है कि वो अपने अहबाब के लिए हर मुश्किल घड़ी में अपने दस्त ताउन दराज करते हैं। इसका तजुर्बा मुझे उस वक्त वहां जब मेरी पहली मुलाकात आज से तकरीबन 3 साल कबल इनसे व्हाट्सएप ग्रुप गुलशन अफसानचा में हुई। इस आदि मुलाकात से कबल मैं उन्हें अदबी रसालों और अखबारात के अदबी सफ़ात पर पढ़ा करता था और उनकी तहरीर से काफी मुतासिर होता था। ग्रुप में मुलाकात के बाद रौनक जमाल साहब से मुझे काफी कुछ सीखने का मौका भी नसीब हुआ। जहां तक उनकी अफसानचा निगारी का मामला है तो वो 1970 से अफसाने तख्लीक कर रहे हैं, लेकिन इधर एक तवील मुद्दत से उन्होंने अफसाना निगारी को बाम उरूज पर पहुंचाने का बेड़ा उठा रखा है। इसके लिए उन्होंने अपनी रियासत में अफसानचा अकादमी कायम कर रखी है, जिसके जेर एहतमाम अफसानचे को फरोग देने का काम तसलसल से हो रहा है। यह हिंदुस्तान में पहली और आखिरी अकादमी है जो सिर्फ अफसानचे पर काम करती है। अब तो रौनक जमाल साहब की शिनाख्त अफसानचे से ही जानी जाती है। अफसानचा और रौनक जमाल एक सिक्के के दो रुख हो गए हैं। जहां भी और जब भी अफसानचे का जिक्र होगा, रौनक जमाल साहब के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। अफसानचे की तारीख लिखने वाला कभी उन्हें फरामोश नहीं कर सकता। जनाब रौनक जमाल साहब अब तक सैकड़ों अफसानचे तख्लीक कर चुके हैं, लेकिन न तो वो थके हैं न ही उनका कलम मुसलसल लिखे चले जा रहे हैं। उनके अफसानचे का पहला मजमुआ 1974 में कत्ल का मौसम के नाम से मंजर आम पर आया था और काफी मकबूल हुआ था। इसके बाद से तो जैसे अफसानचों के मजमुओं की जड़ी लग गई। दूसरा मजमुआ कोशिक खजा 1976 ईस्वी में, तीसरा मजमुआ ज़हरीली इंसान 2002 ईस्वी में, चौथा मजमुआ पिंजरे का आदमी 2007 ईस्वी में, पांचवा अधूरा आदमी 2013 ईस्वी में और छठा मजमुआ अबाबिली शर्मागी 2016 में शाया हुआ। यह रफ्तार अभी थमी नहीं है।
ان کے افسانچوں کے 2 مزید مجموعے دل کی آنکھیں اور ریزہ ریزہ غرور عنقریب منصہ شہود پر آنے والے ہیں. پوری ادبی دنیا میں افسانچوں کے اتنے مجموعے آج تک کسی کے شائع نہیں ہوئے. یہ بھی رونق صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے. ان کی دیگر ادبی خدمات بھی ہیں، لیکن لگتا ہے انہوں نے اپنی حیاتی واقعات کو افسانچوں کو حیات جاوید بخشنے کے لیے وقف کر دیا ہے. اس لیے میں نے اپنے اس مختصر تاثرات میں ان کی افسانچہ نگاری کو مقدم رکھا ہے. مجھے لب کشائی کا موقع دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ خالد بشیر صاحب. میرا خیال ہے کہ اب یہ تاثرات کا دور ختم ہوتا ہے اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی شارق اعجاز عباسی صاحب اپنے تاثرات پیش کریں گے. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جناب صدر سراج الدین صاحب اور رونق جمال صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی جی. تو میں رونق جمال صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آزادی اور ان کی شریعت کو بھی، جو انہوں نے ان کی کارکردگی بیان کی رونق جمال صاحب نے، اس کے مد نظر. اور ایک ٹوٹی پھوٹی سی تہنیتی ایک ان کی آزاد میں پیش کرنا چاہوں گا. امید بارے گرانہ ہی گزرے گا، ذرا ملاحظہ فرمائیں. جی عرض کیا ہے، سنو دوست ایک ہمارا ہے ایسا باکمال، سنو دوست ایک ہمارا ہے ایسا باکمال، ہے جس نے کر دکھائے کئی کام بے مثال، ہے جس نے کر دکھائے کئی کام بے مثال. تاجر ہے وہ بلا کا ادب دوست بھی تو ہے. یہ ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو کی طرف اشارہ ہے. تاجر ہے وہ بلا کا ادب دوست بھی تو ہے دوستی کا اپنی وہ رکھتا بڑا خیال، ہے دوستی کا اپنی ادب کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ. جی، ہے دوستی کا اپنی وہ رکھتا بڑا خیال، اور اس نے افق پہ اردو ادب کے کیا دھمال، اس نے افق پہ اردو ادب کے کیا دھمال. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ رونق کا ہے جمال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ رونق کا ہے جمال. اور لکھتا فقط بڑوں کے لیے ہی نہیں جناب، لکھتا فقط بڑوں کے لیے ہی نہیں جناب، اطفال کے لیے بھی وہ لکھے ہے باکمال، اطفال کے لیے بھی وہ لکھے ہے باکمال. اور اس کے قلم میں بند ہیں دنیا کی فرحتیں، اس کے قلم میں بند ہیں دنیا کی فرحتیں، تحریر میں وہ دیتا ہے دل اپنا بھی نکال، تحریر میں وہ دیتا ہے دل اپنا بھی نکال. اور عرض کیا ہے کہ بچکان چاکی صنف کا بانی وہی تو ہے، بچکان چاکی صنف کا بانی وہی تو ہے، شارق وہی تو آج کی محفل کا ہے جمال. رونق جمال. یہ تاثرات قلم بند کیے تھے بھائی رونق جمال کی وجہ سے. بھائی رونق جمال سے تعلق میرا حالانکہ بہت زیادہ طویل تو نہیں، لیکن پچھلے 5 برسوں سے ایسا قرب ہے کہ ماشاءاللہ ان کی تحریریں پڑھ کر ان سے ملاقاتیں، ہماری پہلی ملاقات عالمی یہ آل انڈیا ادب اطفال سوسائٹی کے سیمینار میں ہوئی تھی. اس کے بعد تو مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ وہ بھی بہت اس میں پیش رہتے ہیں. بچپن گروپ میں تو چھائے رہتے ہیں، افسانہ نگار گروپ میں بھی ان سے ساتھ رہتا ہے. اور یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ یہ محفل منعقد کی گئی ان کے اس اعزاز کی تہنیت میں. میں ان کو ایک بار پھر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ شارق اعجاز عباسی صاحب. اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بار ڈاکٹر ریاض
तौहीदी साहब की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। आप कुछ तासुरात पेश करना चाहते थे, अगर इस वक्त भी हमारे दरमियान मौजूद हैं तो आप अपने तासुरात पेश कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्रिया जनाब। जी मैंने सुना। असल में लाइट प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सका। कश्मीर में ये प्रॉब्लम होती रहती है क्योंकि विंटर चल रहा है। अब इन्वर्टर भी था तो वो भी डाउन हो गया। तो पहले मुबारकबाद रौनक जमाल साहब को। ये नवाब भी है, रौनक भी और जमाल भी, ना तीन खूबियां हैं इनकी शख्सियत। दूसरी बात यह है अल्फाज हिंद। बेहद खुशी हुई जब मैंने 2 दिन पहले ये सुना, देखा कि, और कल जब ये इसका लिंक भी आया और एडवर्टाइजमेंट भी आई, एजाज में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो होना भी चाहिए। नहीं तो हम उर्दू वालों में एक खूबी ये भी है, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो हम जलते हैं। मुझे एक दोस्त है, वो सीनियर है, रौनक जमाल साहब, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि उनको जब एक दिन अवार्ड से नवाजा गया तो लोगों को पता नहीं था उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा, सरकारी अवार्ड था वो। तो जो दोस्त उसके साथ वहाँ पर चले गए थे, दूसरे अदीब उदबा, तो कहा कि जो ही मैंने अवार्ड वहाँ से लिया, अनाउंस हो गया, तो बाहर जब हम निकले तो मैं सोच रहा था सबसे पहले ये मुबारकबाद पेश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो ही मुझे देखा तो भाग गई। यानी तो उन्होंने सोचा हमें क्यों नहीं मिला, मसला वो था। तो अल्फाज हिंद का ये काबिल सताइश कदम है कि उन्होंने ये जो। तो दूसरी बात यह है, सराज साहब ने कल ही मुझे बोला कि अखबार, कश्मीर के अखबारात में ये न्यूज़ आनी चाहिए। उन्होंने लिख के भी, फोटो भी भेजा। तो आज के अखबारात में 1-2 अखबारात में और मैंने वो भेजा भी है, वो लिंक भी सराज साहब को। तो मुकाम है, खुश होना चाहिए हम लोगों को। तो इनका जो पहला ही अफसानचार जिसका जिक्र भी हुआ है, तो 72 में आया है इंटरव्यू इनकलाब में। तो यहाँ पर उनको कहाँ पता था कि अफसानचा निगारी की वजह से ही मुझे एक दिन खुद इंटरव्यू देना पड़ेगा अल्फाज हिंद में। देखिए, हम तारीफ करने में ज़रा बखल से काम लेते हैं। मेरी एक खामी ये है, और खूबी भी कह सकते हैं, मैं जब देखता हूँ कोई आगे बढ़ता है, कोई अच्छा लिखता है, तो ओपन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, अखबार में तारीखी कलिमात लिखता हूँ। इससे क्या होगा? क्या मैं पीछे रह जाऊँगा? नहीं, चराग से चराग जलता है। इनका एक अफसानचा, मुख्तसर तरीन अफसानचा है, मुझे बेहद पसंद आया, इसी ताल्लुक से मैं ये पढ़ूंगा यहाँ पर। तारीख है उसका नाम। तारीख लोग कब करते हैं? जैसे किसी शायर का एक मिसरा है, जीते जी कदर न जानी, मरने का हंगामा हुआ। तारीख है इसका उन्वान। अरे भाई, ये तो दुनिया का उसूल है, तुम अच्छे आदमी की तारीफ की बात कर रहे हो। इस दुनिया तो निहायत बद किरदार, बद अखलाक, नालायक आदमी की भी तारीफ करती है। मामूली से मामूली आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पर उठा देती है। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी तारीफ करने लगते हैं। अगर यकीन न हो तो मर कर देख लो, अगर यकीन न हो तो मर कर देख लो। यानी हम मरने के बाद तारीफ करते हैं। क्यों लिखते हैं मरने के बाद किसी अदीब पर, शायर पर? ऐसा सवाब के लिए। अगर किसी में क्वालिटी अच्छी है, टैलेंटेड है, अच्छा लिखा है, तो क्यों न उनकी जिंदगी में उसकी तारीफ की जाए, एतराफ़ किया जाए। ये इसलिए मैं सोच रहा था, ये अल्फाज हिंद तो उन्होंने नाम रखा है इसका, तो मैं इसमें बेजा मदाखलत नहीं करूँगा। इसका नाम तो होना चाहिए
अल्फाज अदीब, अल्फाज उर्दू या अल्फाज अदब, क्योंकि जिस शौक से, ज़ौक़ से, मोहब्बत से ये लोग अदब की खिदमत कर रहे हैं। खैर, ये तो उनका अपना मसला है, मैं राय दे सकता हूँ। तो बेहद शुक्रिया। और सभी अहबाब देखिए, सभी मुस्कुराते हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में, यानी सभी दिल से खुश है। इसी तरह होना भी चाहिए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त है आज के मेहमान एजाज़ी रौनक जमाल साहब के दिल की बातें सुनने का। अब तक हमने आपसे सवाल किए, आपने जवाब दिए। अब आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ अपने दिल की बातें शेयर करें। जी रौनक जमाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अगर इजाजत हो तो मैं उनकी शख्सियत पर कुछ कहूं। नजर नहीं आ रहे हैं। यास्मीन अख्तर साहब हैं? जी कहिए। शुक्रिया। मैं आप अहबाब को सलाम पेश करती हूँ। आपके साथ और तमाम सामीन और नाज़रीन को भी अकीदत भरा सलाम पेश करती हूँ और रेहान कौसर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी बदौलत हमें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। अब कुछ बातें रौनक जमाल साहब की शख्सियत पर हो जाए। अफसानचा निगारी की दुनिया में आपका नाम कोई नया नाम नहीं है। आप अफसानचा अफसान के मौजूद शुमार किए जाते हैं। आपका नाम तारीख का एक हिस्सा है। आपने अफसानचा अफसान के पौधे को सींच कर एक तराजू दरख्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। कोशिशें तो आज भी जारी है। खुदा करे आपकी तहरीर का रेखा बढ़ता चला जाए। आपने अफसानचा निगारी की दुनिया में 1973 में कदम रखा था। आपका पहला अफसानचा इंटरव्यू है। मालवे बता हो रही है। शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा। अब मैं जी अब मैं वक्त ज़ाया के बगैर जनाब रौनक जमाल साहब की तरफ रुख करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि अब आप अपने दिल की बातें हमें बताएं। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मैं सबसे पहले जनाब अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब का समीर कल्ब से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम और इस महफिल को सजाकर मुझे जो इज्जत बख्शी है, मैं अल्फाज में या किसी और सूरत में चाहूँ भी तो उनका मुकम्मल तौर पे शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अवार्ड मुझे मिला, बेइंतहा खुशी हुई। जब कल की ये प्रोग्राम इतना लाजवाब तो आज की इस महफिल के जिक्र के बगैर अधूरा रहेगा। और मैं इस अवार्ड की जो खुशी है उसको इतना महसूस नहीं कर पा रहा हूँ जो इस प्रोग्राम से मुझे जो इज्जत मिली। मैं ये समझ रहा हूँ कि उस अवार्ड के मुकाबले में ये महफिल और आपके सईद साहब ने जो मुझ पर मकाला पढ़ा और जो भी लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया या सदर महफिल ने जिस तरीके से मुझसे सवाल व जवाब किए और जनाब ने तो यानी अब्बासी साहब ने अपने ख्यालात को अशार में जिस तरीके से पिरो करके पेश किया, ये चीज़ें भुलाए जा सकेगी। मैं
यानी इस कदर खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ कि अल्फाज भी मेरे साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरीके से अपनी बात को आप लोगों के दरमियान में रखूं। मैं खास तौर से उस वक्त मेरी अहलिया भी यहाँ बैठी थी और भांजी भी आई हुई है, वो इंजीनियर है। उसने टीवी में उस प्रोग्राम को कि हम बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो हॉल में उधर वो लोग बैठकर देख रहे थे, लेकिन जब झलकियां दिखाई गई है तो मेरी अहलिया इस कदर खुश हुई कि यानी उसके चेहरे की जानिब देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाह क्या, यानी मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कहाँ से ये तस्वीरें कलेक्ट की गई, कैसी। इसमें तो यानी मैं रेहान कौसर साहब का यानी कैसा शुक्रिया अदा करूं, और उन्होंने इतना कम वक्त में 24 घंटे में इतने शानदार प्रोग्राम को तरतीब देना, और झलकियां तो ऐसी दिखाई है कि ऐसा लग रहा था कि रौनक जमाल नहीं, अमिताभ बच्चन की जिंदगी को दिखाया जा रहा। बहुत खूब रेहान भाई, मैं शुक्रिया के लिए और मैं शुक्रिया आपका अदा करके आपकी कदर कीमत को कम भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने जो काम किया है उस तरीके के उसके हम वजन मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतना बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब प्रोग्राम, और जिस तरीके से सिराज अजीम साहब ने सवालात किए, डॉक्टर अनीस रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा जुमला कह दिया कि जितनी मेरी अदब की उम्र है उतनी उम्र उनकी है 52 साल की। और वाकई में वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। रशीद साहब को जब मैंने दीमक अफसानचा सुनाया था उस महफिल में, मुझे मुश्ताक बेबाक साहब की याद आ गई, क्योंकि उस वक्त हम एक उर्दू फ्रेंड सर्कल अमरावती में बना करके उर्दू अदब की महफिलें सजाया करते थे, और उसी के मुतालिक वो महफिल थी और आप भी वहाँ थे। बहुत खुशी की बात है। और खालिद बशीर साहब ने भी जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया, और आपके डॉक्टर रियाज साहब ने तो बहुत अच्छी बातें कही, और यास्मीन अख्तर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं इकबाल न्याजी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस महफिल में आए। मैं हमारे भांजे एजाज खान जो आकोला से इस प्रोग्राम में मैंने उनको लिंक भेजा था जुड़े, और अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हजरात यहाँ, उनके चेहरे भले ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वो इस लिंक से भी यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और फेसबुक पर यहाँ से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर तहे दिल से मैं रेहान कौसर साहब, सिद्दीकी साहब और अनवर मिर्जा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि ये महफिल इतनी अच्छी सजाई जाएगी, इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम होगा। ये मेरे जिंदगी के चंद हसीन लम्हात में से ये लम्हात है जिनको मैं बेइंतहा यानी महसूस कर रहा हूँ, बहुत लुत्फ उठा रहा हूँ। और जो बातें मेरी इज्जत अफजाई में और मेरे फन पर की गई है, मुझे एहसास दिला रही है कि मैंने कुछ किया है। अभी तक मुझे इन चीजों का एहसास नहीं था, बस लिख रहे, छप रहे, सुन रहे और सुना रहे वाला हिसाब था। लेकिन आज की इस महफिल में इतने बड़े बड़े उदबा और शोरा के जुबान से अपने लिए ये जो कलमात मैंने अपने समात फरमाए हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि चलो रौनक कुछ किया है। अवार्ड मिला तो ये तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस अवार्ड को मुझे तफवीज़ किया। मैं हमारे वजीर आला जनाब भूपेश बघेल साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से उस ज्यूरी मेंबरान का कि जिनके सामने कई लोगों के बायोडाटा थे, और उसमें से उन्होंने इस साल मेरा इंतखाब किया, मुझे उस काबिल समझा कि उस अवार्ड से मुझे नवाजा जाए। मैं ज्यूरी के तमाम मेंबरान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अपने इस महफिल में जो भी लोग शरीक हुए और जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया, और ख़ास तौर से फिर एक बार मैं रेहान कौसर साहब का, अनवर मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने कलमात को यहीं पर। शुक्रिया रौनक जमाल साहब। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ अनवर मिर्ज़ा साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ रेहान कौसर साहब का कि आपने इस खूबसूरत बज़्म का इनेकाद किया और हमें इस खूबसूरत बज़्म में शरीक होने का मौका अता फरमाया। हम इस बज़्म के सिलसिले से अनवर मिर्ज़ा साहब के ख्यालात भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले सितारती खुतबा सुन लेते हैं। मैं सदर मोहतरम
मोहम्मद सराज अजीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें अपने सदारती खुतबे से नवाजें। मोहम्मद सराज अजीम साहब। मोहतरम रौनक जमाल साहब, इस तहनीती महफिल के जिसे मैं अगर एक आम जबान में कहूँ तो दूल्हा और मोहतरम अनवर मिर्जा साहब, मेरे छोटे भाई रेहान कौसर और मोहतरम मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, हमारे बहुत सीनियर कहना चाहिए और अदब के माहिर मलकीत सिंह साहब, जिनको मैंने पहली बार स्क्रीन पर देखा, और डॉक्टर अनीस रशीद साहब और तमाम हाजरीन। ग़ालिबन उर्दू अदब में शायद मेरे अपने दानिश में कि पहली, यह हो सकता है कि हो, मैं नहीं कह सकता कि मेरी नज़र ना पड़ी हो, ग़ालिबन इतनी अच्छी महफिल मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। मुझे याद है सन 2018 में मेरे वालिद को जब अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था उनको, तो जामिया के उर्दू डिपार्टमेंट ने उनके लिए तहनीती जलसा किया था। उसके बाद मेरे बड़े भाई रौनक जमाल का ये दूसरा तहनीती जलसा जो है वो मैं अटेंड कर रहा हूँ, और इस हैसियत से अटेंड कर रहा हूँ कि मुझे रेहान कौसर और अनवर मिर्जा साहब ने जो है सदारत सौंप दी, जिसका मैं बिल्कुल मुतामिल नहीं हूँ, क्योंकि रौनक भाई का कद वैसे भी, एक तो कद, वो तो माशाल्लाह उनका कद वैसे ही बहुत बड़ा है, और अदबी तौर पर भी रौनक भाई का कद मुझसे बहुत बड़ा है। बहरहाल मैं जिस काबिल हूँ, जैसा हूँ, ये रेहान कौसर और अनवर मिर्जा साहब और मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उनकी नज़र इंतखाब मेरे पर गई। शायद इस वजह से भी कि रौनक भाई से मेरे बहुत करीबी मरासिम हैं, और रौनक भाई से मेरे वो मरासिम हैं, वाक़या ये है कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उनके छोटे भाई की हैसियत रखता हूँ। रौनक भाई 2 साल पहले दिल्ली आए एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मेरे वालिद बहुत बीमार थे, बिस्तर मर्ग पर थे। रौनक भाई और फारूक सैयद और दूसरे तमाम लोग जो है वो मेरे घर आए। उसने कहा, रौनक भाई ने कहा कि मैं अंकल से मिलूंगा। मेरे वालिद बहुत कमज़ोर थे, बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी। रौनक भाई की चूँकि एक ख्वाहिश थी, और उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने उनसे कहा कि छत्तीसगढ़ से रौनक जमाल साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते। तो वो तहमत पहने हुए थे, तो उससे कहने लगे कि भाई
अब इतने ऐसे लोग आए हैं तो मुझे पायजामा पहना दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने ज्यादा अलील थे, इतना उनको तनफ्फुस की शिकायत थी, बहुत ज्यादा, बहुत नहीफ थे, बहुत कमजोर हो गए थे। और ये रौनक भाई इस बात की गवाही देंगे कि जब रौनक भाई उनसे मिलने के लिए आए तो वो सामने व्हील चेयर पर, वो वाली साहब तो बेड पर उठकर बैठ गए, हालांकि लेटे हुए थे वो, और उनको बिठाल के इनसे पूछा, बातचीत की। हालांकि बहुत उसमें आवाज में बोल रहे थे, लेकिन इनसे बातचीत की इन्होंने। तो वो रौनक भाई से जिस अंदाज से, और फिर उसके बाद से रौनक भाई ने जो रवैया मेरे साथ किया एक बड़े भाई की हैसियत से, वो मेरे लिए काबिल रश्क है। और मैं उसके लिए रौनक भाई का बेइंतहा मशकूर हूँ। आज जिन जिन लोगों ने रौनक भाई के ताल्लुक से जो बातें की, जब कोई शख्स इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जहां लोग उसकी बातें करें, जहां लोग उसकी मिसालें दें, तो वो, जिसको एक अंग्रेजी का एक लफ्ज है कि वो एक रेकनिंग शख्सियत बन जाता है। लोग उससे ताल्लुक, उससे मिलना, उसके साथ रहना, ये उनके लिए एक बाइसे फख्र बन जाता है। ये मैं वो इंसानी जज्बात बता रहा हूँ कि जो बहुत मासूम जज्बात होते हैं, हर शख्स के अंदर होते हैं, और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि वो इंसानी जज्बात होते हैं। आज और शायद उन्हीं जज्बात के तहत, मैं शायद आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार उस चीज़ को जता रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। रौनक भाई को ये मालूम है कि रौनक भाई जिस वक्त अपने फंक्शन से वापस आ रहे थे, अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे, वो टाइम था 11:15 बजे का, ग़ालिबन 11:15 बजे का टाइम था। और मेरी भतीजी जो थे उसकी सालगिरह थी, और हम पूरा खानदान जो है वो आउटिंग पर थे, हम लोग होटल में थे। वहाँ से जैसे ही रौनक भाई को अवार्ड मिलने का वो आया तो मुझसे रहा नहीं गया। उस वक्त पार्टी चल रही थी, मैंने वहीं से ही रौनक भाई को जो है वो वीडियो कॉल किया और मैंने रौनक भाई को उसकी मुबारकबाद दी, और रौनक भाई से कहा कि मुझे जो भाभी की शक्ल दिखाइए, भाभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि इसकी ज्यादातर सेहरा जो है उनके भाभी के सर जाता है। वो बहरहाल मजाकन चाहे हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीक हयात किसी शख्स की तरक्की, उसकी नामवरी, उसकी इज्जत और उसके नाम और नामूस को महफूज करने वाली सबसे बड़ी शख्सियत होती है। ये शायद लोग इस चीज को जानते नहीं हैं, तो दूसरे कभी मजाक में लेते हैं, कभी, क्योंकि अगर जो शख्स इतना मसरूफ रहता है, बिजनेस में मसरूफ है, लिखने में मसरूफ है, अपने सोशल वर्क में मसरूफ है, क्लब के अंदर मसरूफ है, वो आप ये देखें कि वो शरीक है, वो शरीफ औरत जो 4 दीवारी के अंदर बंद है, जो उस शख्स की जिंदगी का सारा अहाता कर रही है, उसके मिलने वालों को, उसके आने वालों को, उसके जाने वालों को, उसकी कहना चाहिए कि उसके अदबी जिंदगी को और सोशल कंटेक्ट्स को वो जो कर रही है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और ये
अगर कुछ लोगों को मैसर ना हो तो वो, मेरा अपना मानना ये है कि उनकी तहरीरों में, उनकी जिंदगी में भी खलल होता है। तो इस मामले में रौनक भाई बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी भाभी जैसी शरीक हयात उनकी जिंदगी में है। इसके अलावा रौनक भाई एक जो सबसे अहम पहलू है जो मुझे बहुत पसंद है, रौनक भाई अदब में इधर उधर भटके नहीं, कभी ये इस गली में घुस गए, कभी उस गली में घुस गए, कभी रौनक भाई ने एक रास्ता, ठीक है वो एक रास्ता उन्होंने कच्चा रास्ता है, चलिए भाई कच्चा रास्ता है, अभी अफसानचे को पहचान नहीं मिली है, अफसानचा को कोई जानता नहीं है, अफसानचे की अभी डेफिनेशन नहीं आई है, अफसानचा बहुत वो नहीं, लेकिन वो अफसानचे की राह पर, अफसानचे की मंजिल के लिए वो मुस्तकिल जो है वो गामजन है, मुस्तकिल चल रहा है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा मौसम आ रहा है, मुझे कौन मेरे पर भक्ति कस रहा है, कौन मुझे छेड़ रहा है, कौन मेरे पर आवाजें कस रहा है, कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो यहाँ इस बात के कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिंदगी में एक मकसद, एक टारगेट, तो मुझे रौनक भाई का जो ये अंदाज है कि रौनक भाई ठीक है और चीज़ों में हैं, वो अपने एक्टिंग भी करते हैं, अपना ड्रामे भी लिखते हैं, अब ये सब कुछ करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही शद्दोमत के साथ अपने आप को जो है अफसानचे के लिए वक्फ कर दिया, उसी के मुसाफिर बन गए, उसी की राह पर चल रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए कि वस्फ है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से वो इसके ऊपर चल रहे हैं मुस्तकिल। और जाहिर सी बात है कि जब एक शख्स एक जानी पहचानी राह से गुजरता है, चलता रहता है, उसको उस राह पर चलता रहता है, तो जो रुमूज, जो बातें, जो हालात, जो उस रास्ते के हालात जो उस शख्स को मालूम होंगे, वो शायद किसी को नहीं मालूम। तो रौनक जमाल का जो मामला है वो ये है कि रौनक जमाल आज अफसानचे के ऊपर बर्रे सगीर के अंदर एक अथॉरिटी है, अब ये अलग बहस है कि वो क्या है, किस टाइप का है, ये तमाम चीजें, ये वो तनकीदी मामला है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल रौनक जमाल का एक मकाम है अफसानचे के, जहां अफसानचे का जिक्र आएगा रौनक जमाल को कोई छोड़ नहीं सकता। रौनक जमाल का जिक्र जरूर आएगा, चाहे वो 2 लफ्ज लिख गए, चाहे बुराई में लिखे, चाहे रौनक जमाल की बुराई में लिखे, लेकिन रौनक जमाल का जिक्र के बगैर अफसानचा हिंदुस्तान के अंदर जो है मुकम्मल नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। इसके बाद रौनक भाई की एक और आदत है, रौनक भाई महफिलों की जान तो रहते ही रहते हैं, जहाँ कहीं भी जाएं तो अपने शगुफे, अपने ये तमाम चीजें छोड़ने के अलावा, उसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि ये अपनी जेब से एक जादू की पुड़िया निकाली है उनका। अब इन्होंने अभी क्या किया है, से 2 साल पहले इन्होंने जादू की पुड़िया निकाली और वो इन्होंने बचकांचा, अब वो सबके सामने बचकांचा, अब जो है वो लोग बचकांचे के पीछे भाग रहे हैं। और इन साहब को इनकी बहस में वो अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे, मेरे मोहतरम बुजुर्ग एम ए हक साहब को, जिन्होंने पहला अपना बच्चों के अफसानचों का मजमुआ शाये किया। परल एक ऐसी प्यारी शख्सियत, और आपको बता दूं, ये मैं बोल तो बहुत कुछ रहा हूँ रौनक भाई के बारे में। रौनक भाई तो अब जाके मुझसे ठीक हुए हैं, वरना बड़े नाराज थे, बड़े मेरे हाथ मेरे पीछे पड़े रहते थे। इन्होंने मुझसे बहुत एक तकरीबन आज से 4 साल पहले मुझसे अपने ऊपर एक, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर मजमून लिखूंगा आपके, बहुत अच्छा। अब जाहिर सी बात है कि हमारा भी मामला यह है कि हमने इनको एक जो है वो मीठा लॉलीपॉप दे दिया,
अब ये चूसते में पूछते रहे भैया अब दूसरा लॉलीपॉप कब मिलेगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रौनक भाई की और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी आदतें हैं, बहुत सी बातें हैं। ये इनका अवार्ड का मिलना और फिर इतनी हसीन एक महफिल का इनेकाद, जिसका पूरा क्रेडिट जो है वो रेहान कौसर और अनवर मिर्जा साहब को जाता है। इतनी खूबसूरत महफिल मैं समझता हूँ कि ये रौनक भाई के शायान शान था और हम सब लोग रौनक भाई की इस कामयाबी पे बेइंतहा खुश हैं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से समीम क़ल्ब से अपने अश्कबार आँखों से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को और ज़्यादा और मंजिलें तय कराए और एक दिन सिराज अजीम अपने बड़े भाई को जब उस बुलंदी से देखे तो उसका सर उसको देखने के लिए ऊंचा हो और उसकी नजरें जो है वो उस चोटी को देखती हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत मुबारक भाभी, अगर देख रही हैं तो भाभी को बहुत बहुत मुबारक, तमाम लोगों को, उर्दू अदब को मुबारक, और रेहान कौसर, अनवर मिर्जा, मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब को मैं इनके इस कदम के ऊपर, अगर शायद अली सिद्दीकी साहब मेरे सामने होते तो, जिसको हमारे मलकी सिंह साहब जी बैठे हैं सामने, तो मैं उनको कहूँगा कि मैं बड़े ज़ोर से झप्पी लेके, पंजाबी ज़बान में झप्पी जो लेना होती है, झप्पी लेके मैं इसकी मुबारकबाद देता इन तीनों हजरात को, और इनसे उम्मीद करता हूँ कि अदब की दुनिया में इसी तरह की महफिलें सजाते रहेंगे, हकदार को उसका हक पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं कहना चाहिए ख्वाहिशों के साथ, इन तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर मोहम्मद सिराज अजीम साहब। अब मैं ज़रा सा भी वक्त बर्बाद किए ज़ाया किए बगैर नहायत ही अदब व एहतराम के साथ अनवर मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि हाँ, आप हमें अपने तासरात से नवाजें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रौनक जमाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, न सिर्फ अवार्ड की बल्कि आज के बज़्म में आपके लिए लोगों ने जो कुछ भी बातें की उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहतरीन तासुरात पेश किए सभी लोगों ने, और खुद आपने भी बड़ी अच्छी बातें की। और हमारे नसीम साहब ने जो मकाला पढ़ा उसमें उन्होंने तो आपकी पूरी जिंदगी पेश कर दी, अदबी जिंदगी, लगभग उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो मैं तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आज इतने ज्यादा लोग हमारे दरमियान इस बज़्म में रौनक साहब की मोहब्बत में यकजा हो गए हैं कि फर्दन सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो सिराज साहब हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने लास्ट मोमेंट पे उनसे सदारत के लिए गुजारिश की, जिसे उन्होंने कबूल किया। और क्योंकि और जो कुछ बातें उन्होंने की उससे मुझे लगा कि उनका इंतखाब बहुत सही था। तो कोई ऐसा शख्स ही सदर बन सकता था जो रौनक साहब से इतनी वाकफियत रखता हो उनकी अदबी और समाजी जिंदगी के ताल्लुक से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब। और
सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और रेहान कौसर साहब का बहुत शुक्रिया कि लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा अरसे से कोई एक टेक्निकल कार्रवाई हैंडल कर रहे हैं। रेहान कौसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अब इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, जरूर तशरीफ लाइएगा। तमाम का शुक्रिया। रेहान कौसर साहब जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहतरम अनवर मिर्ज़ा साहब। मैं ख़ास तौर से खुसूसी तौर पर रेहान कौसर साहब का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने पसे पर्दा रहकर इस प्रोग्राम को इंतहाई महारत से तकनीकी तौर पर कंट्रोल किया। इसी के साथ आज की ये खूबसूरत महफिल तमाम हुई। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी का, खास तौर से सिराज अजीम साहब ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी और अपना प्यार और अपना दुलार मुझ पे निछावर किया है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सईद साहब का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ और रेहान कौसर साहब के शुक्रिया के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये तो उनका एक ऐसा जादू देखने मिला आज कि इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों को जोड़ना और इस खूबसूरत तरीके से इतना शानदार प्रोग्राम को मुनक्किद करना एक यादगार बना दिया मेरी जिंदगी के इन लम्हात को रेहान कौसर साहब ने और आप तमामी ने शिरकत फरमाकर जो इस महफिल को रौनक बख्शी है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेहान कौसर साहब। जी मोहतरम, मैं कुछ अर्ज करूं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये रुखसाना साहिबा आ गई हैं। अच्छा, खुशामदीद, खुशामदीद। जी मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ मोहतरम रौनक जमाल साहब को इस एजाज के लिए भी और इस शानदार में शुक्रिया। वाकई ये बहुत बड़ा कदम है। अब तो यूट्यूब पे पूरा बर्रे सगीर नहीं बल्कि आलमी पैमाने पे इसको लोग देखना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। और जैसा कि अभी तक दो अफसानचों की जो नशिस्तें हुई है, तकरीबन यूट्यूब पर 700 से 750 लोग उसको देख चुके हैं और ये महफिल और ये प्रोग्राम तो इतना ज्यादा दिलचस्प है कि इंशाअल्लाह तमाम रिकॉर्ड को ये तोड़ देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं अकोला से अकबर अली खान एजाज, रौनक जमाल साहब के भांजे। जी जी, खुश। मुझे अभी आपके सदारती खुतबे में सिराज साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक एजाज मामू जान को तो मिला ही, लेकिन हमारे ममानी जान को भी एक एजाज से नवाजा गया, जो कि काबिल तारीफ बात है। बहुत खूब कि अहलिया का जिक्र और उसमें बहुत ही, यानी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही संजीदगी से सिराज साहब ने जो ममानी जान का जिक्र किया, वाकई में तारीफ के लायक है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक दुआया शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा
तुझे इतना उरूज मयस्सर खुदा करे कि आसमां भी तेरी वुसअतों पे रश्क करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। बहुत रेहान कौसर साहब, ओवर टू रेहान कौसर साहब। रेहान कौसर साहब आए थे, शायद फिर ऑफ हो गए हैं। तो हम लोग अब ये बज़्म खत्म करते हैं। जी, हम सब लेफ्ट हो जाते हैं। जब ये बज़्म खत्म होती है